اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کے انسان گھاٹے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر چلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے صبر و تحمل۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر دیتا ہے۔ بے صبری جو ہے وہ انتہائی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ندیم کی روحانیات کے قدیم ذہانت، قدیم نفسیات ہماری گٹھی میں شامل ہے اور اس سے نجات پانا آسان نہیں۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی قدیم ہیں وہ ہمارے لیے کبھی فائدہ بھی دیتی ہے اور کبھی جو ہے وہ نقصان بھی دیتی ہے۔ اس طریقہ سے یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ جذبات میں آ کر جو ہے بہت زیادہ کام خراب کر لینا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ پرسکون زندگی جو ہے ہمیشہ انسان کو پرامن اور پرسکون بناتی ہے۔ یہ سارا نفسیات کا کمال ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ بے چینی میں ہمیشہ جو ہے وہ جلدی، بے چینی میں ہمیشہ چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، جبکہ انسانی ہمدردی کے اندر جو ہے وہ عظمت ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے تمام اہداف جو ہے وہ مقرر کرتا ہے اور خواہشات زندگی کو اپناتا ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ یعنی کہ خواہشات اور اہداف کی مگر جو ہے یعنی کہ جو منزل ہوتی ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے ہر وقت۔ پیدائش سے لے کے فوتگی تک وہ انہی خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ جب وہ ان خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اس کی کوئی ناکامیاں یا کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب اس کے اندر جو ہے ناکامیاں ہوتی ہیں تو غصہ اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور غصہ ہی جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جو لوگ غصے میں رہتے ہیں اور غصے کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کرتے بلکہ حالات کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ اپنے تجربات اور حالات پر جو ہے وہ پرسکون نہیں ہوتے۔ ہوتا کیا ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندرونی سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اندرونی سکون ختم ہو جاتا ہے تو جذباتی طور پہ وہ جو ہے وہ اپنی ذہانت کا اظہار بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، جس کی میں دو مثالیں آپ کو دینے کے بعد ہم آگے جو ہے وہ ایموشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ایموشن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور ایموشنل کے جو ہے وہ خوشی اور غصہ جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے ہم یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیا عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بھی چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ جب ہم راضی ہو جاتے ہیں تو 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کامیابی ہے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے جو ہے وہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کام نہ کریں اور سارا دن فارغ بیٹھے رہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں اسی لیے دیے تو آپ جو ہے وہ کام کریں، لیکن نتائج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے نتائج جو بھی آپ کام کریں ان کو جو ہے وہ اللہ پہ جو ہے وہ بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ تو جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے نتائج کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی اور کامرانی آپ کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ایموشنل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچاتی ہے، جس میں جو ہے وہ ایموشن جو ہے انسان کو جو ہے یہ جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں یہ انسان کو جو ہے یہ مختلف قسم کے جذبات ہیں اور مختلف قسم ایموشنز ہیں، ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی بعد میں بات کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دو واقعات سنانے کے بعد جو ہے ہمارے یہاں پہ سول اسپتال میں جو ہے قیدی وارڈ ہے، وہاں کا ایک سچا واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو
ये मतलब कैदी जो है वो मैंने उधर गया तो एक कैदी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई साहब आप माशाल्लाह इतने बारिश और इतने खूबसूरत और इतने जो है ये कैदी वार्ड में आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप जो है ये कैदी बने और कैसे आप जो है ये इस तरीका से आ गए। तो उसने मुझे बताया कि मैं थका हारा जो है ड्यूटी से, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड था, ड्यूटी से आया तो हमारे साथ हमसायों की जो है वो शादी थी। तो अब मैं 2 दिन से जो है मुसलसल तौर पे ड्यूटी की और उसके बाद आके जो है जब लेटा तो वो ढोल बजा रहे थे। तो मुझे जो है ये बड़ी मतलब मेरे तो नींद से मेरी आंखें फटी जा रही थी, मेरा सिर फटा जा रहा था। तो मैं जो है वो ऊपर गया और उनसे मना किया भी वीडियो आप जो है इसको बंद करेंगे, आप मेरा भी ख्याल करें। हम साहब वो कहते थे हम तो खुशी मनाएंगे, आप जो मर्जी कर लें। तो मेरे डब के अंदर क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड था, मेरे साथ जो है वो दूसरे के साथ पिस्टल भी था। मैंने निकाला तो 5 फायर किए और 5 बच्चियों को मैंने जो है वो मार दिया। इतना मुझे गुस्सा आया उनकी इस हरकत से। तो अब मैं जो है वो उम्र कैद की सजा जो है काट रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी इमोशनल, जितने भी इमोशन इस किस्म के हो जाते हैं जिसको इंसान को गुस्सा आता है, वो अपने कंट्रोल से बाहर होता है तो सारी जिंदगी के लिए फिर वो उसको पछतावा लग जाता है। तो एक मैं अपनी जाती बात करके आगे जो है वो शुरू करते हैं। आज हम अपने एक हकीम साहब का किस्सा और उसके बाद जाइए अरिस्टोटल और अरस्तू का किस्सा जो है ये वो भी माहिर नफ्सियात थे, फलसफा के माहिर थे, उनके बारे में भी आज जानते हैं। तो मैं जो है वो पीसीएस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 72% मार्क्स लेके क्लियर किया। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे जो है ये मौका मिला कि मैं इंटरव्यू में जो है वो गया लाहौर में। इंटरव्यू में जो है सामने मेरे जो है वो पूरा पैनल बैठा हुआ था, बड़े अच्छे सवाल आपको जवाब हुए। कोने में एक जो है वो बंदा बैठा हुआ था, उसने ऐनक लगाई हुई थी, उसकी नाक थोड़ी सी तोता जिसम जैसे तेज, मतलब कि जो है वो पतली सी नाक थी। वो चश्मा लगा के बड़े प्यारे अंदाज में साइड पे बैठा हुआ था। जब मैं उठने लगा तो उसने आखिरी सवाल किया कि सर अगर आप पहले जॉब कर रहे हैं तो अगर हम ये जॉब आपको ना दें तो फिर, मैंने कहा सर जो मैं पहले जॉब कर रहा हूँ फिर वही करूंगा। तो जब मैं वापस आया अपने दोस्तों से बात की बाहर आके, उसने कहा कि दोस्तों ने कहा कि तुम तो अपने इंटरव्यू को सारे कैरियर का बेड़ा गर्क करके आए हो, तुम्हारे अंदर ये मतलब जो सलाहियत जितनी भी है उनका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने कहा भाई मैंने तो दोस्त जो आप दिया जो उसने मुझे आखिरी सवाल पूछा वो असल में माहिर नफ्सियात था। तो उसने मेरी नफ्सियात तय की कि ये आगे प्रमोट होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है कि ये आगे नहीं चाहता। इसलिए ऐसे ही जो है इम्तहान दे के पास करके और अब ये जो है ये जो पिछली सीट को छोड़ के जो है जैसे कि खालिद बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला, तार बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला के जो है ये काम किया था, तो मुझे तो ऐसे काम करना चाहिए था रवि। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं। तो जिंदगी में जो पछतावे का जो है ये देखिए पहला वाकया और दूसरा वाकया जो है ये नफ्सियाती पहलू ऐसे होते हैं जिनको समझ सोच के जो है हमें ऐसा जवाब में देता कि नहीं मैं पिछली किस्तें चलाया हूँ, मुझे 100% यकीन है कि मेरी सीट ये है और मैंने 72% मार्क्स हासिल करके इंटरव्यू में आया हूँ और मुझे यकीन है कि मैं सीट हासिल करूंगा। तो प्यारे दोस्तों ये सारा जो है सिलसिला नफ्सियात का है। पहले बंदा जो है हमारा जो है ये जितने भी जो होते हैं सब जो है ये कहते हैं कि हम जो है दिली तौर पे बीमार होते हैं, हमारा दिल नहीं करता काम करने को, सुस्ती हमारे अंदर आ जाती है। तो हम ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं। तो जब ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं तो उसके बाद जो हम जिस्मानी तौर पे बीमार होते हैं। और जो बंदा ज़हनी तौर पे बीमार नहीं होता वो जिस्मानी तौर पे बीमार नहीं होता। ये जो है एक फार्मूला है जिसको आप हमेशा याद रखें। तो इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आज हम थोड़ा सा जो है अरिस्टोटल के बारे में जान के इसके बाद हम नफ्सियात के कुछ जो है वो पहलुओं को, हमारे नफ्सियाती वर्कशॉप, हमारी जो वर्कशॉप जो है ये 3 माह बाद 6 माह बाद जो है वो DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में होती रहती है, साइको डिपार्टमेंट में फातिमा वार्ड के अंदर ये वर्कशॉप और ये होटलों में और मुख्तलिफ जो है वो सेमिनार इनके जो है मुनक्कद होते रहते हैं। तो मैं भी इनका जो हिस्सा जो है बना हुआ हूँ और काफ़ी देर से जाइए डॉक्टर इम्तियाज अहमद डोगर साहब हमारे इंचार्ज है वहाँ के फातिमा वार्ड के, प्रोफेसर डॉक्टर सॉरी। तो मैं उनके जो है वो बड़े ख़ास रहमो करम वाले बंदों में हूँ।
تو وہ مجھ پہ جو ہے وہ بڑی عنایت کرتے ہیں اور بہت شفقت کرتے ہیں. جب بھی کوئی اس قسم کا ایونٹ ہوتا ہے تو مجھے جو ہے یہ ضرور موقع دیتے ہیں کہ میں وہاں پہ چلا جاؤں. تو یہ جو ہے مشہور مفکر حکیم ارسطو کے بارے میں، ارسطوٹل کے بارے میں ہم بات کر کے جو ہے یہ آگے تھوڑا سا اس کو بڑھاتے ہیں. جی یہ جو ہے علم الحیوانات کا ماہر تھا، تجربہ کار معالج تھا اور ماہر نفسیات تھا. اس کو ارسطوٹل بھی انگریزی زبان میں کہتے ہیں. تو اس نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ حیوانات اور انسان میں جو ہے فرق عقل کا جو ہے انہوں نے یہ عقل کا نور عطا کر کے رتبہ خوب بڑھایا، یہ حال ہی فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب عقل کا نور ہمیں عطا کر دیا ہے تو عقل کو استعمال کرنا جو ہے یہ صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے یہ شام کو یہ سب دن جو ہے یہ کتابیں پڑھتے تھے اور مریض دیکھتے تھے. شام کو یہ مجلس کرتے تھے تو یہ انصاف اور دلائل کی باتیں کرتے تھے، اپنی غلطیوں کا دیانتداری سے اعتراف کرتے تھے. تو پیارے دوستوں، جو میری بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ مجھے ضرور بتایا کریں، تو مجھے جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو دیانتداری سے اعتراف کر کے کھانے پینے، پہننے اور سننے میں اعتدال اور علم الحیوانات اور ماہر نجوم یہ تھے اور فلسفہ کے ماہر تھے. فلسفہ میں جو ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے یہ دماغی فلسفہ یعنی کہ جو ہے ذہنی فلسفہ، نفسیاتی فلسفہ کے بارے میں انہوں نے جو ہے کہا. تو یونانی طور پہ جو ہے وہ ارسطاطیس جو ہے ان کا نام ہے، تو اس کو جو ہے وہ ارسطوٹل جو ہے مفکر کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے حکمت کا شدائی اور علم و فضل کا جو ہے وہ خوبیوں کا مالک تھا. تو اس طریقے سے اس کو جو ہے یہ اس نام سے یعنی کہ ارسطوٹل یا ارسطو کے نام سے جو ہے وہ پکارا گیا. یہ جو ہے یہ حضرت ہارون رشید کے دور میں تھے. اس وقت جو ہے یہ ایک اور بھی جو ہے جس کو جو ہے وہ بہاول دنا جو ہے بہاول دنا بھی کہتے تھے، وہ بھی ان کے دور کا جو ہے یہ ایک دانا تھا جو جو ہے وہ بھی نفسیات کا ماہر تھا. اور انہوں نے یہ دونوں نے مل کے جو ہے بیسیکلی طور پر بہاول دنا اور یہ جو ارسطوٹل جو ہے یعنی کہ ارسطو نے ایک جو ہے زبردست قسم کے ان کے بارے میں جو ہے جانا کہ یہ جو نفسیات ہوتی ہے بیسیکلی طور پر کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو جو ہے ہارون خلیفہ ہارون رشید جو ہے انہوں نے جو ہے سوال کیا کہ حسن کیا ہے. جواب دیا جو عقل کو پسند آئے. یعنی کہ حسن کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کو جو ہے عقل سے جو ہے پسند کرے تو وہ حسن ہے. حسن جو ہے کسی چیز میں ہو سکتا ہے، بلاغت میں ہو سکتا ہے، فراغت میں ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مطلب کہ شکل و صورت میں ہو سکتا ہے حسن، آپ کی جو ہے وہ تعلیم میں حسن ہو سکتا ہے، آپ کی جو ہے کہ آپ کی جو باتوں میں حسن ہو سکتا ہے. یہ ساری جو عقل تسلیم ہوتے ہیں تو وہ پسند ہے. آپ مجھے جو ہے سننا پسند کرتے ہیں یا آپ جو ہے جو میرے دوست احباب ہیں وہ مطلب مجھے سننا پسند کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اصل میں جو ہے کیا ان کو جو ہے عقل کے اندر وہ مجھے جو ہے سننا پسند کرتے ہیں، اپنے دماغ سے سننا پسند کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ عقل کا ایک دلیل ہے. تو پھر پوچھا کہ حسن کا دوسرا درجہ کیا ہے جو شریعت کو پسند ہو. اس طریقہ سے جو ہے ارسطو نے جو ہے اپنے اقوال کا جو ہے کیا. تو اس نے اللہ کو ایک جانو اور عبادت کرو اور رفیق سفر کی جو ہے وہ قیمتی سمجھو، اس کی جان جو ہے اس کو بڑا قیمتی سمجھو. تو یہ اس کے جو ہے اقوال تھے. قسطنطنیہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے شہنشاہ روم کے اندر جو ہے یہ شہنشاہ روم سے ریکویسٹ کی ہارون رشید نے کہ مجھے جو ہے کوئی ارسطوٹل کی یا ارسطو کی جو ہے وہ کتاب بھی جو ہے وہ تھوڑی سی چاہیے. تو اس طرح سے ایک رابر ملا شہنشاہ روم کو. تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک جو ہے لائبریری ہے، تمام جتنے بھی مسلمان یا جو ہے ہمارے کابرین گزرے ہیں ان کا علم و خزانہ اس لائبریری میں موجود ہے. تو شہنشاہ روم جو ہے وہاں پہ گیا اور جا کے جو ہے وہاں سے تمام کتابیں جو ہے وہ اکٹھی کی، ان کو گٹھڑی میں باندھا اور ہارون رشید کی خدمت میں پیش کر دیا. اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ارسطوٹل کی کتابیں تھیں جن کا جو ہے وہ انہوں نے عربی زبان میں ترجمہ کروایا. اور ان میں جو ہے یہ خاص طور پہ جو ہے علم نباتات اور علم حیوانات اور نفسیات اور سیاست اور مذہبیت کی کتابیں جو ہے وہ طبی مسائل اور اخلاقیات کی کتابیں یعنی اخلاقیات اور نفسیات کی کتابیں اس میں اہم تھیں، جس میں جو ہے کتاب السماء
العالم، یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے، یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، اس کا جو ہے یہ عربی میں ہے یہ والی. اور اسی طریقے سے کتاب القلوب و فساد، تو یہ بھی جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے. اور کتاب النفس، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور خاص طور پہ جو ہے نفس سے ہمارا کے اوپر، اور ہمارے جو ہے یہ جتنی بھی میں نے 2-3 باتیں کی اس کے اوپر یہ بڑی زبردست کتاب ہے کتاب النفس جو ہے وہ. اور کتاب الحمان، اور کتاب جو ہے وہ حالیات، اور کتاب الاخلاق، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں بیسیکلی طور پر یہ بیسک نالج اباؤٹ جو ہے وہ نفسیات کے بارے میں بیسک نالج ہے، اور یہ سب سے پہلا نالج ہے. اس کے بعد آج تک جو ہے یہ کسی نے بھی اس نالج کو اڈاپٹ نہیں کیا. تو فلسفہ کو جناب ارسطو صاحب نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ بیان کرتے ہوئے ارسطوٹل نے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں فلسفہ کا اصل جو ہے وہ منبع جو ہے وہ نفسیات ہے. اور اس کو ذہن کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، جب ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچ جو ہے کسی بھی انسان کی سوچ کیا ہے، اس کے اندر بے چینی کا ہونا، اور اس میں جذبات کا ہونا، جذبات کا بڑھ جانا، کم ہونا. ارسطو نے علاج معالجہ کا سب سے پہلا جو ہے یہ اصول جو ہے وہ دماغی طور پہ کسی مریض کو چیک کرنا، اور اس کے جو ہے نفسیات کو پرکھنا، اور اس کے مطابق اس کا علاج کرنا، یہ ارسطو نے سب سے پہلے جو ہے یہ ایجاد کیا. اور اسی کو جو ہے وہ اس نے سب سے پہلے مالی خولیہ کا علاج کیا. مالی خولیہ ایک دماغی مرض ہے، اس نے سب سے پہلے جو ہے اس کو جانا اور جو ہے اس کا علاج کیا. اس نے جو ہے دماغ کا تنقیہ کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے اجارت جو ہے وہ بنائی، اور اس کے بعد ایک شربت بھی تیار کیا جو کہ بادشاہ کا دماغی توازن جو ہے وہ یہ اس نے جو ہے درست کر دیا. یہ بادشاہ جو ہے یہ مالی خولیہ کا مریض تھا، اور قراب الدینی نسخوں میں جس کا جو ہے یہ نسخہ شربت بھی شامل ہے. اور اسی طرح سے اپنے یارج آج تک جو ہے یہ استعمال ہو رہی ہے. اس کا ایک قول آپ جو ہے بیان کر کے جو اپنی پریزنٹیشن کی طرف آئیں گے. جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ دن کی مشکلات برداشت نہیں کر سکتے، انہیں جہالت کی لالت اور سختی علم پر جو ہے وہ عمر بھر برداشت کرنی پڑتی ہے. تو جو ہے جب انسان علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کی سختی، اساتذہ کی سختی، رات دن پڑھنا، اپنے آپ کو چھوڑ دینا، اور جو ہے مریضوں کی طرف اپنا معالج کا مکمل طور پہ جو ہے علاج کرنے کی طرف رجوع کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو ہے اگر کوئی نہیں اڈاپٹ کرتا تو کیا ہوتا ہے پھر؟ مطلب یہ اگر بندہ جو نہیں پڑھتا تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر ایک مزدور اور جو ہے ایک مستری یا ایک جو ہے وہ پروفیسر میں ہی فرق ہے کہ ایک پروفیسر یا ایک جج جو ہے وہ قلم سے کماتا ہے، اس کی قلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کسی کو پھانسی دے کے کسی کو پھانسی سے اتار بھی سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک مزدور سارا ہمیشہ جو ہے وہ سر کے اوپر اپنے جو ہے وہ چیزوں کو اٹھا کے جو ہے لیے پھرتا ہے. اس طریقے سے یہ پرابلم جو ہے اس کو ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی طور پر کیا کرنا ہے جی، ہمیں کیا کرنا ہے جی، ہم نے جو ہے مزدور بننا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا کہ آپ نے جو ہے یہ جج یا ڈاکٹر یا حکیم یا پروفیسر یا جو ہے وہ ایک معالج بننا ہے. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا. تو اس طریقے سے یہ جو بھی بننا ہے آپ نے، تو اس طریقے سے جب آپ بنیں گے یہ چیز جو ہے یہ بنیں گے تو اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے بن سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے تو آپ وہ چیز بن ہی نہیں سکتے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے عمل ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے کہ آپ نے بننا کیا ہے، کیا نہیں بننا. تو اس طریقے سے جو ہے جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پھل جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں. جو لوگ محنت کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہترین اور کامیابی سے جو ہے وہ بسر کرتے ہیں اور گزارتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو ہمارے ڈی ایچ او کی بات ہو رہی تھی، تو ڈی ایچ او میں جو ہے ہمارے سیکائٹری ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ جو ہے یہ سیکائٹری کی ورکشاپ جو ہے وہ اکثر ہوتی رہتی ہے، اور میں جو ہے اس میں جاتا رہتا ہوں. تو یہ اس کا جو موضوع جو ہے جو ہے یہ ہر ایک جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی موضوع ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کمپریہنسو سائکیٹرک اسیسمنٹ جو ہے تھیوری اینڈ پریکٹس پریزنٹیشن
डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। इसमें 2 दिन की ये वर्कशॉप थी। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज डोगर साहब और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, डॉक्टर इरम सदीक साहबा और डॉक्टर आसफ जिया बाजवा साहब, मिसेस समरीन अफजल साहब, ये जो है बेसिकली तौर पर बच्चों की जो है, तो ये हमारे जो है साइकेट्री डिपार्टमेंट और बिहेवियर साइंसेज DH हॉस्पिटल फैसलाबाद के जो है ये वर्कशॉप जो हुई। डे 1 के अंदर जो है सबसे पहले उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें रिसाइटिंग होगी और इफ्तिताह होगा, और उसके बाद जो है वो अडल्ट साइकेट्री के बारे में बताया जाएगा, असेसमेंट के बारे में बताया जाएगा, हिस्ट्री टेकिंग कैसे हम हिस्ट्री लेते हैं, और उसके बाद जो है ये बायोडाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन जो है वो हमें जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कैसे हमें जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, तो इसका मतलब ये होता है जो भी उसको बीमारी है मतलब कि वो कैसे उसको वो बयान करेगा, और उसके बाद जो है वो अपनी बीमारी की जो है वो तारीफ जो है कैसे उसको शुरू हुई, क्या कहाँ से हुई, तो झटका लगा उसको या कोई मतलब जो है इस तरह से जो है वो अचानक उसको जो है ये को फौतगी हो गई, और इस तरीके से कोई एक्सीडेंट हो गया, और इस तरीके से कई मतलब चीजें जो किसी ने इसको आप दरखास्त दे दी, या मतलब को कोर्ट में जाना पड़ा, या जो है वो अचानक उसको जो है वो दिमागी तौर सदमा पहुंचा, वो ज्यादा पढ़ता पढ़ता इस तरीके से हो गया। तो बहुत ज़्यादा जो है मैम जो है ये नफसियाती मरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर केसेस हमारे पास भी आते हैं, फिर एक मॉलेज के तौर पे आते हैं। तो एक केस छोटा सा मैं अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं, तो एक केस मेरे पास आया, वो बच्ची जो है डिप्रेशन का शिकार थी बेसिकली तौर पर। वो कुरान पाक हिफज कर रही थी, उसके कारिया ने उसको ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ था, जिसकी वजह से उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब एक रकू उसको कहती थी कि मुझे रोजाना आपसे सुनना है, इस कदर उसको डिप्रेस किया हुआ था मौलमा साहबा ने। तो इस तरीके से जो है ये वो डिप्रेशन का शिकार थी। तो वो मुझसे जब दवाई ले गया तो मैंने उनको सोमीना जो है नींद आवर दवाई थोड़ी सी दी, तो उसके बाद जो है वो अगले दिन साफ तशरीफ लाए, तो उन्होंने सोमीना भी नहीं लेके दी, तो वो बाकी दवाइयाँ मेरी उसने जो है वो नहीं खाई। तो किसी ने उनको कहा कि इसको जो है जिन है, तो वो किसी वो जो बाबा जी के पास चले गए, तो वो असल में साइकोलॉजिकल पेशेंट जो होते हैं उनको लोग जो है इस तरीके से जो है मिसगाइड भी कर देते हैं। तो वो बाबा जी के पास उन्होंने कहा कि वाकई इसको जीना है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो उसको दवाई जो है लिख के दी साथ, वो जो है बेसिकली तौर पर डायजीपाम या ब्रोंजोपाम उन्होंने उसको लिख के दी। उन्होंने डिप्रेशन की दवाई लिख के दी। मैंने उसको अब मरीज दोबारा मेरे पास अगले दिन आया कि मेरी बेटी को जनाब जिन थे, तो इसलिए आपने तो वो मतलब ना कहा कि सिर्फ ऐसी नफ्सियाती प्रॉब्लम है। तो अभी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये जो नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है, हम तो यही पढ़ा हुआ है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, तो उनमें जो है ये अब मैंने अपने दिल में सोचा, उसको तो नहीं कहा कि अगर इसको ये जिन था तो उसने जो डिप्रेशन की दवाई क्यों लिख के दी है बाबा जी ने। चलो उसको छोड़े, हम आगे चलते हैं जी। हिस्ट्री जो है वो कैसे हम करते हैं, और पास कैटरिंग जो है सर्जिकल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री कैसे लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री कैसे लेते हैं, और उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री कैसे लेते हैं, और उसके बाद जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द साइको सेक्सुअल हिस्ट्री हम कैसे लेते हैं, और इसके बाद जो है ये जो है वो प्री मॉर्बिड हिस्ट्री जो है जिसमें जो है प्रेजेंटेशन एंड द डेमोन्स्ट्रेशन हम कैसे करते हैं जी। और सोशल सर्कल मेरे वो किसके साथ मिलता है, भाई बहन में छोटा बड़ा है, और इस तरीके से वो जाता है, शाइन तो नहीं है, क्योंकि वो शर्म तो नहीं महसूस करता, बातों में जो है वो आसानी से बात कर लेता है पेशेंट। और इसी तरीके से बच्चियां बहुत ज़्यादा ऐसी आती हैं जो बात नहीं कर सकती, वो सिर्फ शर्माती रहती हैं। हमारे मुल्क में ये रिवाज है, मैंने बाहर के मुल्कों में जितने मुल्कों की मैंने सैर की, बच्चियां बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव और तेज़ है, उनमें जो है शाइनेस नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप शाइनेस हो, इस्लाम कहता है कि आप इक्वल है। मैंने बहुत से मुल्कों में देखा है कि वो कंडक्टर भी जो बच्ची है, वहां पे औरतें और मर्द जो सेम काम कर रहे हैं, बैंकर्स है हर जगह पे, वो इसी तरीके से जैसे डॉक्टर लेडी डॉक्टर है बिल्कुल इसी तरह से बाकी टीचर लेडीज टीचर भी है और जेंट टीचर भी है। तो ये सारा कुछ उन मुल्कों में जो है मौजूद है। तो हमारे मुल्क में जो इस्लाम कभी भी मना नहीं करता। अब तो औरतें जो माशाल्लाह आगे आ रही, लेकिन हमारे जो है थोड़ा सा शाइनेस जो है वो है। पर्दा तो जरूर होना चाहिए, लेकिन पर्दे के अंदर बहुत से लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया, बहुत सी औरतों को मैंने देखे हैं, बहुत सी बच्चियों को काम मैंने देखे हैं, तो बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। तो इसी तरीके से जो है सोशल उनके जो है वो क्या एक्टिविटीज है,
सोशल प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बहुत है, शादी के बाद के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। तो शादी से पहले के बड़े प्रॉब्लम है, शाइनेस की वजह से औरतें अपने आप को बयान नहीं करती, खुद डिप्रेस रहती हैं और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी का शिकार होती हैं और अपने आप के अंदर घुलती रहती हैं और दहेज के प्रॉब्लम और इस तरह सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसको हम आस्ता आस्ता डिस्कस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो सिस्टमेटिक और जनरल एग्जामिनेशन हम उसको करेंगे और इसके बाद जो एक्टिविटी एग्जामिनेशन इन दी ग्रुप जो है इसके बाद हम जो है करेंगे। तो बेसिकली तौर पर मेंटल हेल्थ को हम थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद जो है ये आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटीज इनके जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक जो है कैपेसिटी जो है जब हम क्लिनिकल डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो है जो हमें जो है वो उसमें एक कम्युनिकेशन जो है मरीज के साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से बनानी चाहिए और दूसरे नंबर पे जो है वो हमें बड़े अच्छे तरीके रिलैक्स मूड के अंदर जो है वो बैलेंस वे के अंदर उसको जो है मरीज को बिठा के और बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है हिस्ट्री लेनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम जब भी मरीज को जो है वो चेक करें तो उसके अंदर जो भी उसके अंदर जो है हम पहले सबसे ये देखें कि जितने भी नक्साती मरीज आते हैं तो हमारी बात को समझते नहीं है। बाद का तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा है कि अक्सर जो है वो मुझे जितनी भी मैं जंग के इलाके में रहा हूँ, DHP जंग में रहा हूँ और इसी तरीके से RSC नया लाहौर में और RSC जो है वो जाना में रहा हूँ। जागलियों के जो है वो इलाके बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा फेस हुआ कि मैं उर्दू स्पीकिंग था, मुझे इतना ज़्यादा जो है वो पंजाबी का भी बहुत कम जो है ये नॉलेज था और इसी तरीके से जो है ये खास तौर पर जागली बोली जो है ना उसको समझना थोड़ा सा जो है बहुत मुश्किल था। दबी डिग्री और उसके बाद फुल पैना और इस किस्म के जो अल्फाज जो है शुरू शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो अंडरस्टैंडिंग शुरू कर दिया कि ये क्या कह रहे हैं या क्या कह रही है। तो मुद्रे जो मेंसेस पीरियड को जो है वो फुल पैना कहते हैं। तो इस तरीका से और भी इस तरीका से जो है कुछ ऐसे अल्फाज धीमी डिग्री जो है मतलब कि सुबह के टाइम और दिगर जो है वो दोपहर शाम का टाइम जो है वो कहते हैं। तो इस तरीके से जो है नमाशी ये भी अल्फाज वो इस्तेमाल करते थोड़े हम जो है वो आगे चलते हैं। तो रात को जो है वो नमाशी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सिलसिला जो मरीज की जो है वो अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए कि वो क्या बयान करना चाहता है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप असिस्टेंट से वहाँ के किसी इलाके से जो है वो उर्दू में उसका तर्जुमा जो है वो करवा दें। तो दूसरे नंबर पे ये होता है कि जब भी मेंटल कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है तो मरीज जो है असल में जो है वो बोल नहीं सकता सही तरीके से अपने दुख को बयान नहीं कर सकता और सही तरीके से आपके पास जब आता है तो वो जो है उसमें जो है ये बड़ी जो है प्रॉब्लम होती है कि वो जो है वो ये तो बता सकता है कि मुझे नींद नहीं आती, आप फील कर सकते हैं नींद नहीं आती, लेकिन उसके जो अंदर के दुख है उनको निकालना जो है एक फन है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जो ये एक्सरसाइज होती है कि सबसे पहले उनके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो जो है वो उनके वो उसके अंदर ये ऐसा नॉलेज वो उनके जानते हो और उनके अंदर ये स्किल्स महारतें हो कि वो जो है अपने क्लिनिकल डिप्लोमा के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज करें। जितने नॉलेज है आप देखिए फोर्थ ईयर में हमारे फादर तिब्बत में भी ये नफ्सियात पढ़ाई जाती है, होम्योपैथिक में भी नफ्सियात पढ़ाई जाती है। हमने जो है वो खास तौर पे क्राइम जो है ये जो है इसमें LLB में भी नफ्सियात पढ़ी है और मैंने जो 5-6 जगह पे जो है वो नफ्सियात पढ़ी है। तो इस तरीका से जी ये जो है वो साइकाइट्री और साइकोलॉजी जो है बड़े अहम टॉपिक है। तो ये हम जो है जिसके और इसके में जो है बड़ा जो है वो हम मरीजों का जो है जब इसको देखते हैं तो सबसे पहले मरीज आके हमारे क्लिनिक को देखता है, हमारे पर्सनैलिटी को देखता है और इस तरीके की चीज़ों को जब देखता है तो इसमें जो है बड़ा असर पड़ता है। तो ये जो है वो मतलब जो हमारे कुछ दोस्त जो है वो ऐसे ही जो है वो मतलब मेरे जैसे क्लिनिक को जो है वो सफाई भी नहीं करते और इस शीशियाँ लगा के तो बैठे हुए हैं तो वो जो है थोड़ा सा जो है मरीज को मुतासर होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हमें उसकी जो है कैपेसिटी के मतलब जानना चाहिए कि मरीज कितनी बात जो है वो हमें समझा सकता है और हम कितनी बात उसकी जो है वो समझ सकते हैं। तो बात बात ऐसे होता है कि मरीज जो है वो भी दरवाजे से एंटर होता है तो हम उसकी जो है वो साइकोलॉजिकल उसकी जो है वो इशारों की और फिजिकल कंडीशन और उसकी जो है दीगर कंडीशन को समझ के बहुत ज़्यादा जो है कर सकते हैं। तो असल में जो जो हमारा जितना भी इलम है जो
अल्लाह ताला ने हमें अता किया होता है, उसमें जो है वो अल्लाह ताला की देन होती है, जिसमें जो है हमारा जो है वो तजर्बा भी शामिल होता है। तो जब हम तो इसको जो है वो तजर्बे के मुताबिक मरीज को जब देखते हैं तो उसकी जो है वो अंदर की इनसाइड, यानी कि उसकी जो है वो अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं वो भी जो है हमें मिलने को मिलती है कि हम जो है वो उससे जब प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, उसकी जो है वो साइकी को समझते हैं, और उसके बाद जो है उसकी जो है वो अंदर की फीलिंग को हम जो है वो जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उसके अंदर जो है वो जान सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है ये दोनों चीजें जो है हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो मरीज को जो है सुनेंगे, और उसके बाद जो है उसको जो है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो हम अपने उसकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है हम उसको जो है वो जान सकेंगे कि वो जो है वो कैसे जो है वो है। तो इसके बाद जो है कि ये जो है गोल्स हमारे क्या है कि इसमें असेसमेंट हम कैसे करते हैं। तो मेक डायग्नोज हम जो है वो सबसे पहले तशखीस को मद्देनजर रखते हैं कि आप तशखीस कैसे करेंगे, और उसके बाद डायग्नोज के अंदर जो है वो उसको जो है कंटेक्स्ट को जो है वो मद्देनजर रखते हैं। और तीसरे नंबर पे हम जो है वो थेराप्यूटिक रिलेशन जो है इसके अंदर जो है वो करते हैं कि हमने इसका इलाज कैसे करना है। और उसके बाद जो है वो हम उसका जो है वो एक इंटरव्यू तैयार करते हैं, जिसमें जो है मुख्तलिफ सेशन हम उनका लेते हैं कि एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन इंटरव्यू लेते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों ऐसे हुआ, तो आपको ये मतलब जो है वो। और उसके बाद उसके मतलब जो है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारी जो है साइकाट्री, यानी कि जो भी इसमें जो है उसके वालदैन से, उसके बहनों भाइयों से, जो उसके रिलेटिव उसके साथ आते हैं, जो अटेंडेंट होते हैं, उनसे हम उनकी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम जो है वो उसकी ट्रीटमेंट के मतलब जो है वो डिसीजन करते हैं कि कैसे हमने उसकी जो है वो ट्रीटमेंट करनी है। इसके बाद जो है हम जो है उसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करके जो है वो उसके असेसमेंट को जो है वो मद्देनजर रखते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम जब उसका जब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हम एक ऐसा पोस्टर बना के उसके सामने बैठते हैं, हाँ भाई आप बताएं क्या मसला है आपका। तो अब अगर हमारे पास टाइम नहीं है या खुद से टाइम है, ये हरी में है, तो फिर भी हम उसको जो है यही साबित करते हैं कि हम तो आपके मुखलस हैं, और इस तरीके से हम आपको जो है ये। और उसके बाद जो है ये उसके साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे हम जो है वो एक नोट तैयार करेंगे। उसके अंदर जो है वो अपने जो है वो उसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीजें जो है वो शामिल होगी। तो जिसके बाद जो है वो हम उसकी हकीकत को जानते हो उसके इंटरव्यू को जो है मुकम्मल कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो अगर वो उसके अंदर जो वो टाकटिव है, यानी कि ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसे सवालात करने चाहिए जिसका जवाब जो है वो पेशेंट के पास ना हो, बल्कि मुख्तसर सा जो है इंटरव्यू जो है आप करेंगे, एक ही सवाल को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये उसकी जो है वो जितनी भी कंप्लेन है उसको मद्देनजर रखते हुए उसका इंटरव्यू मुकम्मल करें। और उसको जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन को जो है वो यस नो के अंदर नहीं बल्कि ओपन क्वेश्चन करें। मतलब ये है कि टेल अबाउट दी प्रॉब्लम, कि आप मुझे जो है बीमारी के मतलब बताएं, ये है ना कि आपको ये तकलीफ तो नहीं है, वो कहे नहीं है। तो आपको जो है बुखार रहता है, नहीं रहता। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम को बताएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये जो है इस तरीके से अगर आप इस तरीके से पेशेंट को डील करेंगे, तो आप उसकी नफ्सियात को समझने के बाद जो है उसको जो है वो फ्रीली तौर पे जो है उसको उसके साथ जो है वो चंद मिनट जो है वो जरूरी क्वेश्चन करें कि भाई आपका जो है वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उनके पेशे के बारे में और इस तरीके से दीगर चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू करने के बाद जो है आप उसके बारे में थोड़ा सा जो है मजीद उसको जो है फोकस कर लेंगे। और उसके बाद उसके सिम्टम जितने भी जो है उसको आप नोट करके जो है वो उसके जो है खास जो है वो में जो है जो महसूस होते हैं कि ये इसके नफ्सियाती जो है डिसऑर्डर है, यानी कि नफ्सियाती बीमारी इसके अंदर मौजूद है। ये जो है बार बार जो है वो मुंह में उंगली डाल रही है बच्ची, नाक में उंगली डाल रही है, ये सारे नफ्सियाती प्रॉब्लम, झुक के बैठ रहा है, सीधा होकर नहीं बैठ रहा। तो इस तरीके से जो है हम इसके मतलब जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है ये उसकी प्रॉब्लम को, उसकी तमाम किस्म की प्रॉब्लम को समझते हुए उसको जो है वो अब जो है वो डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें जो है वो बहुत सी हमारी ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम जो है ये उसकी असेसमेंट कर सकते हैं।
यानी कि उसको जान सकते हैं कि मरीज जो है वो अब कैसा है, क्या क्या कर रहा है, और उसके मुतल्लिक जाइए। तो माइंड साइंस के बारे में थोड़ी सी बात करके इसको वाइंड अप करते हैं। तो किसी और दूसरे में जो है वो तो कल इंशाल्लाह इसको जो है मजीद जो है टेक्निक जो है इसके बारे में हम जानेंगे। तो माइंड साइंस जो है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइंस है असल में। इसमें जो है बेसिकली तौर पर हम ये जानते हैं कि माइंड साइंस जो है वो हमें जो है वो मुस्तकबिल के बारे में और गुजरे हुए वक्त के बारे में और मौजूदा जो है डिजीज के बारे में सारा कुछ जो है हमें गाइड कर देती है। हम जो है पेशेंट को जब हम देखते हैं, अभी मैंने दो आपको बातें बताई, दो अपने जो है वाकयात सुनाए जो हकीकत वाकयात थे। उसमें जो है ये मैंने पहला वाकया मैंने उस बंदे का बताया कि जो इस किस्म की जो है प्रॉब्लम के अंदर था कि जिसमें जो है ये मतलब वो उसने जो है गुस्से में आकर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से जो है ये बड़ी प्रॉब्लम उसको जो है वो फेस हुई। तो और दूसरी मैंने अपना बताया कि मैंने सोचे समझे बगैर जो है ये जवाब दे दिया। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से जो इंसान जो है बहुत ज़्यादा जो है वो घाटे में चला जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान घाटे में है कि जो है वो, लेकिन जो लोग जो है वो सब्र के साथ करते हैं तो वो जो है कामयाब होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो है हकीम रस्तू का जो है कौल है, उसको भी जब हम देखते हैं तो उसमें भी जो है हमें ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके बारे में हम बहुत सी चीज़ें जो है वो जानते हैं कि एक जो है इल्म रखने वाला वो एक ही दफ़ा मेहनत करता है और सारी ज़िंदगी उसके लिए जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। जबकि अगर कोई बंदा जो है वो मेहनत नहीं करता तो सारी ज़िंदगी उसके लिए जो है ये मुश्किल हो जाती है। तो ये मुश्किल उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलें जो है क्रिएट करती है। तो हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन मुश्किलात से बचा जाए और इन मुश्किलात से बचते हुए हम जो है ये अपने जो है वो इल्म को जाने और इसके मतलब जो है वो तरक्की करें। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। तो उन्होंने मुझे मुझे नहीं पता था कि इनके जो वेबिनार से मुझे इतने ज़्यादा फ़ायदे पहुँचेंगे, और मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि इनके इस वेबिनार की वजह से मेरी जो है कुछ बहुत ज़्यादा जगहों पे पजीराई हुई। कल जो मेरी प्रेजेंटेशन थी तो वो जो है डॉक्टर बाबर साहब ने सुनी। तो डॉक्टर बाबर साहब ने मुझे जो है ये ऑफर की है, मसूद वालों की जो है ये एक होती है हर महीने के आखिरी इतवार को यहाँ पे फॉक एंड नाइट के अंदर जो है ये मीटिंग होती है। तो उन्होंने जब मेरी ये प्रेजेंटेशन है वो सीजीजियम वाली जो सुनी, तो उन्होंने जो है ये मुझे ऑफर किया है कि मैं वो फॉक एंड नाइट के अंदर जो है वो अपना जो है ये लेक्चर जो है डिलीवर किया करूँ हर इतवार को। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि मैं जो है अपने नॉलेज का और अपने जो है ये जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है उसका इजहार करूँ। तो इंशाल्लाह जो है इसको हम जारी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों का और ख़ास तौर पे उसके भाइयों का। और ख़ास तौर पे जो है मैं आखिर में वही बात कहूँगा कि जो है नफ्सियात हमारी जो है ये जज्बात को कंट्रोल करते हुए वो अपनी जहानत को जो है वो जब हम अपने जज्बात को कंट्रोल करेंगे तो हमारी जहानत जो है ऑटोमेटिक जो है बेहतर हो जाएगी। तो जब हम अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी जहानत भी दब जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें मेरे दोस्तों और भाइयों के, और ये जो है वो अपने जज्बात को हमेशा कंट्रोल में रखें और हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए जो है वो सब्र और शुक्र के साथ जो है वो जिंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।